So it's 9 p.m. We will start now. As yesterday I discussed with you that demo is important as per my thinking, and many people respected it. And yesterday, without much prior notice, three people immediately appeared for that demonstration, and I appreciate their efforts and initiative. So it was first demo was by Shraddha madam, and I just want to comment my make my comments so that at least though she may be elderly, but then I wanted to add something. See, our intention of having this particular online teachers training program is obviously to make connection between existing very good teachers who don't have that particular understanding of online teaching or have little phobia of online teaching, and student obviously who need to matlab they are deserving but they are not getting the very good teachers in their direct connection only because teachers are not much aware about this online teaching. So this part, how much we have acquired, or how much we have really done justice to that particular activity, that is what I wanted to check, and that is why we have kept this demo sessions. Yesterday Shraddha Kalap madam's lecture was good in the sense that she followed the rules. First is she mentioned in her slide that it is 10th English, and then she made some small PPT sort of thing, or presented at least her screen, in which boldly it was visible what she is trying to teach. And then she went into the teaching part in a very good spirit. Probably the way she was explaining poetic teaching sort of thing may be essential for the language like things. Present generation senior students may be a little bit comfortable with such type of teaching. What I observed about Shraddha Kalap madam online teaching is it requires good network, which she was having. Voice was very clear, and then PPT was clear. Now, really speaking, you may feel that it was not madam's contribution, but it is essential element, and so we can consider that in case she wants to continue with now teaching activity for English like subject, whatever she needs, she is equipped. So if she has joined us with the intention कि ऑनलाइन टीचिंग मैं शुरू करना चाहती हूँ, तो शी इज इक्विप. सो हमारा जो उद्देश्य था वो कुछ हद तक सफल हुआ, जहां तक थेराटिकल सब्जेक्ट्स की हम बात करें. देन सेकंड इनिशिएटिव सपोर्टेड बाय जयती मैडम, जो मिहिर भट्ट सर के मोबाइल से एंटर हुई थी, तो शंकर सर वही गलती से मिहिर भट्ट सर बोले, तो मैडम ने उनको करेक्ट किया. तो उन्होंने सब्जेक्ट शायद कुछ चीजें उन्होंने मेंशन नहीं की, जो जिसके कारण मैं एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैडम ने क्या लिया. तो मैडम ने कुछ सीनियर या जूनियर कॉलेजेस का सब्जेक्ट लिया, जिसमें उन्होंने कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट एक्सप्लेन किया. काफी अच्छे से फर्स्ट स्लाइड बनाई, उसमें काफी बहुत सारे पॉइंट्स लिखे, एंड शी वेंट थ्रू दोज पॉइंट्स विथ हर नॉलेज एंड एक्सप्लेन देम वेरी वेल. ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, क्योंकि काफी पॉइंट्स थे. ठीक है. तो जस्ट मेरी तरफ से, आप बुरा मत मानिए, आप एक करिए कि जब आप पीपीटी पे लेक्चर दे रहे हो, तो पीपीटी इज समथिंग लाइक पुराने जमाने के स्पीकर्स ओरेटर, जैसे मैं भी बहुत जगह चीफ गेस्ट करके जाता हूँ और पीपीटी का प्रावधान नहीं होता है, और सपोज एक्सट्रीम नया टॉपिक है, तो मैं चीट बना के जाता हूँ और उसमें पॉइंट्स लिखे रहते हैं. फिर एक एक करके जैसे अपने मन से मैं कवर करते जाता हूँ, तो वो पॉइंट्स मुझे डाइवर्ट होने से बचाते हैं. तो आप बहुत सारी चीजें अगर स्लाइड में लिखेंगे और आप उसको पढ़ने में वक्त जाया करोगे, सामने वाले भी वो पढ़ेंगे, फिर ऐसा हो जाता है कि पीपल स्टार्ट डाउटिंग द कंटेंट ऑफ योर ब्रेन विच नीड टू कम इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस. तो मालूम नहीं जयती मैडम इधर है कि नहीं मेरे लिस्ट में. जयती मैडम, जस्ट गिव मी सेकंड, आई विल चेक थ्रू. जिनका जिक्र हो रहा है वो मैडम नहीं है, बट रिकॉर्डिंग रहता है तो शायद वो देख ले इसको बाद में. तो जयती मैडम का पीपीटी मोड था सब्जेक्ट स्टैंडर्ड चैप्टर, ये उन्होंने ठीक से मेंशन नहीं किया, तो मैं आप सबसे वही बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डोंट अंडर एस्टिमेट एनी बडी सजेशन. मतलब जैसे मैं भी सजेशन दे रहा हूँ, आप देखते होंगे मेरे लेक्चर्स, जो जनरल टाइप के लेक्चर्स मैं लेता हूँ, लोगों को मेरा पीपीटी बहुत पसंद आता है, और पीपीटी का उद्देश्य वही है, टेक्नोलॉजी का मिलाप है आपके ओरेटर स्किल के साथ. नॉलेज आप एक्वायर करते हो विकीपीडिया और गूगल से, और पीपीटी में डालते हो, जो भी आपको अच्छा बनाना आना चाहिए, और इन दोनों का मिला जुला कॉम्बिनेशन आप लोगों को एहसास दिलाता है कि ओके, इट वाज ओके, एवरेज, बैड, गुड और बेटर, बेस्ट.
इस तरीके से आप थोड़ा ये सब चीज करिए. बट कल के 2 लोगों के लिए सारे जो है वो बिल्कुल निकष म्हणतात मराठी त्याला. मतलब ये सब जो लेवल ऑफ ग्रेडिंग है ये नहीं है. कल उन्होंने हमने पूछा, उन्होंने हाँ बोला. यही श्रद्धा मैडम के लिए और जयती मैडम के लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव और कंट्रीब्यूशन है कि दे सेड यस. देन एट द एंड ऑफ लेक्चर शंकर सर गायब हो गए लेक्चर से. नेटवर्क इशू होगा. फिर टेक ओवर किया ही नहीं उन्होंने, और मंगलम सर ने बहुत लेट से आपको रिस्पॉन्ड किया. ये अभी मैं आपको लगेगा कि मैं मिस्टेक पॉइंट आउट कर रहा हूँ, नहीं. ये आप लोगों को समझना होगा. हम सब लोग जो है, शंकर सर, मंगलम सर, मैं, हम लोग यंग है, तो हम लोग ये सब चीज हो गई ना तो बाहर जाते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा करेंगे, टेरेस पे खड़े हो जाएंगे, नेटवर्क में चले जाएंगे, फिर ज्वाइन करेंगे. आप जो एल्डरली लोग हैं उनके लिए सारी चीजों को समझना जरूरी है कि यू शुड बी रेडी फॉर सच टाइप ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन. आप क्लास लेने वाले हो तो आपको सपोर्टिंग मेंबर होगा कि नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, कॉलेजेस में, स्कूल में होगा. बट नॉर्मली जब प्राइवेटली आप पढ़ा रहे हो तो हम इस लेक्चर के लिए प्रोविजन रखा है कि 2 सर प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि आप बड़े लोग हो तो कुछ आप लिखेंगे चैट बॉक्स में तो कोई पढ़ेगा. फिर सर पढ़ाते जाएंगे, गलती से किसी को आवाज नहीं आ रही, उसने चैट बॉक्स में लिखा तो समझा नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए. इसलिए बोथ दी लेक्चर्स, मंगलम सर का तबीयत खराब था तो भी वो प्रेजेंट थे. तो आपको भी आपके लेक्चर्स में इन केस यू हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो किसी स्टूडेंट को ये जिम्मेदारी देनी होगी कि ही इज मॉनिटर ऑफ क्लास, और उनको माइक ऑन करके बोलने की पूरी परमिशन है. वही डिसिप्लिन का हिस्सा देखेंगे. जैसे हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं उसमें ऑलरेडी एक सीक्रेट एजेंट है हमारे. जो सीक्रेट एजेंट काम क्या करते हैं, किसी ने गाली लिखा, किसी ने कुछ प्रॉम्प्ट कर दिया, किसी ने किसी को मैसेज किया, तो शुरुआत में हमने 450 बच्चों में से जो 100 बच्चे हटाए, वो बीच बीच में ये कमेंट लिखते थे, चलो दोस्तों पबजी खेलते हैं, ये करते. तो ये सारी चीजें है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए. इसलिए शायद हमने ये सारी चीजें आपके लिए रखी है. आई विल नॉट वेस्ट मच टाइम. जो लोग सचमुच बीमार है, किसी को ये हुआ, उसको वो हुआ, तो हम सर डेमो नहीं दे पा रहे, ये सब अगर सही है तो टेक केयर. बट बहाने हैं तो नहीं चलेंगे, क्योंकि ये सब आपके लिए हो रहा है. तो आज जिन्होंने डेमो की बात की, उन्होंने जैसे सीक्वेंस में बोला है वो सब मैनेज करेंगे शंकर सर. मैं इस पीरियड में कुछ जो हमारे बाकी चीजें चलती है उसका कोऑर्डिनेट करता हूं, तो आई मे नॉट बी प्रेजेंट. बट मैं आज आपका वीडियो फिर से कल दिन में कहीं ना कहीं वक्त निकाल के देखूंगा. एंड देन कल शाम को जो 9 बजे का आखिरी लेक्चर होगा वो अभी मैं कमेंट करूंगा. आज सारे डेमो खत्म नहीं होंगे तो टेंशन मत लीजिए, कल खत्म करेंगे. आपके कुछ पेंडिंग डाउट्स है वो भी शंकर सर आज कल में खत्म करेंगे. ओके. तो शंकर सर प्लीज टेक ओवर, और टेक ओवर करके जिनका नंबर है उनको करने बोल दीजिए. Okay, sir. Thank you. So, without wasting much time, I would like to request Mridul Singh sir to start their demo. Mridul Singh sir, please start your presentation and your demo. Okay, sir. Hello Thank you. everyone. Am I Sir, audible, your sir? voice is too low. Just a minute, sir. Now? Now it's fine, sir. Okay, sir. Thank you so much. Uh, Hello everyone. A very good evening to one and all. I have selected the topic for today's demonstration as trigonometry. You all know that trigonometry is one of the uh, topic of mathematics. So for sharing the slides, whenever it requires, I will share. So I'm going to give a brief introduction of trigonometry. The word trigonometry is derived from two Greek words, trigonon, that means a triangle, and metron, that means I measure. Thus the word trigonometry literally means measurement of triangles. But at present, it has much wider scope and application in every branch of science. In every branch of higher mathematics, pure or applied, a knowledge of trigonometry is one of the greatest value. Uh, it is
matter of great pride of us that the study of trigonometry was first started in India. Its elements can be found even in Rig Veda. All the ancient Indian mathematicians like Aryabhatta, Bhaskaracharya, and Brahmagupta got important results. All this knowledge first went from India to Middle East and from there to Europe. Before ending my session, I want to show a slide. Just a minute. I hope my screen is visible to everyone. Yes, sir, it is visible. Yeah, sir. In the upper side, in the peak of this trigo is looking like in heaven. That is, there is written Rig Veda, means from Rig Veda, it is coming to our country, India, and there are some mathematicians like Aryabhatta, Bhaskaracharya, Brahmagupta, and from India it goes to Middle East, and from Middle East it goes to Europe, right? So this is my slide part, which was required in the last. So thank you so much to Shankar sir and all the management committee. Thank you so much, sir. Over to you, sir. Okay, sir. Thank you so much. Thank you so much for your presentation and demo. Now I will request Pratibha Jagdale ma'am to please start their demonstration. Okay, sir. Hello. Hello. Ma'am, sorry, but we can't hear you. Okay, please check your connection because particularly I can't hear you. Okay, now I can see your presentation, but still I can't. आवाज येतोय का माझा? हो मॅम, आता आवाज येतो तुमचा. हॅलो. मॅम तुमचा आवाज येतोय, तुम्ही सुरू करू शकता मॅम, तुमचा आवाज येतोय. ओके ओके सर, थँक्यू. आज आठवीचा तर याच्या लेखिका आहेत प्रसिद्ध एक्सक्यूज मी मॅम, आय एम सॉरी, पण तुमचा आवाज खूप जास्त कट होतोय मॅम. तुमचं नेटवर्क मे बी व्यवस्थित नाहीये, तर तुमचं एकदा नेटवर्क प्लीज चेक करा आणि एकदा तुम्ही एक काम करू शकता, तुम्ही एकदा मीटिंग लीव्ह करा आणि परत जॉईन करा, जेणेकरून तुमचा आवाज आम्हाला क्लिअरली दिसायला लागेल. ओके, तुमचा आवाज सध्या आम्हाला व्यवस्थित येत नाहीये. ओके सर. येस मॅम. We will wait for 10-30 seconds. Before, yeah, that's fine. मृदुल कुमार सर, just wanted, क्योंकि मैं कल रहूंगा नहीं रहूंगा इस लेक्चर में, आपने प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड दिखाया और आपने ट्रिग्नोमेट्री लेने की कोशिश की. इट्स वंडरफुल, बट आप शायद मेरा एक्सपेक्टेशन समझे नहीं. आई जस्ट, मतलब मैं आपको ऐसे नहीं कि निगेटिव बोल रहा हूँ, आपको ये लेना है कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा. मैथमेटिक्स का लेक्चर लेना बहुत मुश्किल है इस ऑनलाइन में,
और वो लेने के लिए जो टूल्स सर ने इतने दिन सिखाए उसका किसी का इस्तेमाल आपको करना चाहिए था। देखिए आप स्लाइड्स प्रेजेंट करना या पीडीएफ में कोई किताब प्रेजेंट करना, इट इज वेरी इजी, और उसको एक्सप्लेन करना वो तो आप देखते हैं कि हम सब कर पा रहे हैं अभी। बट जिनको स्पेसिफिकली मैथमेटिकल एबिलिटी दिखानी है तो उसके लिए आपको जो टूल्स सर लोगों ने पढ़ाए हैं उसका इस्तेमाल करके कैसे एंगल ड्रॉ करेंगे, कैसे बच्चों को बताएंगे, ओके, ये सब देखिए। एनीवेज प्रतिभा मैडम हैज जॉइन, सो मैडम प्लीज कंटिन्यू। मॅम आय थिंक तुमच्या नेटवर्कमध्ये इश्यू आहे, तर तुमचा आवाज अजूनही आम्हाला येत नाहीये, तुमचं प्रेझेंटेशनही अजून आम्हाला दिसत नाहीये. इफ यू डोंट माइंड, ओके ओके, नाउ द प्रेझेंट, ओके, हा, तर प्रेझेंटेशन आता दिसतंय मॅम, आणि आवाज तुमचा अजूनही मला क्लिअर येत नाहीये. आवाज येतोय का माझा? हा मॅम, बोलू शकता आता, आता आवाज येतोय. ओके, प्रतिभा मॅम लेफ्ट झालेल्या आहेत, तर आय विल रिक्वेस्ट तुंगारे मॅम टू स्टार्ट देअर डेमो. Yes, sir. Sure. Am I audible? Yes, sir. Am I audible? Can you hear my voice? Yes ma'am, we can hear your voice, but there is a background noise in it. One minute, sir. I want to share the screen. Just a minute, sir. Okay, okay. Okay. Let me share the screen here. Just a minute, sir. Sure, I will do. Okay ma'am, please take your time. Can you see the screen? Ma'am, it looks like you are in front of TV, so please get aside. No, I'm in the separate videos on the mobile. One minute. Just give me 1 second, sir. I Yes will ma'am. come back in a second. Okay, sir. Am I audible? Yes ma'am, you are audible and your presentation is also visible. Please go ahead. Okay, thank you, sir. Thank you. Good evening, everyone. Good evening, my students. I'm going to be the lecture for the standard 9. My subject is the algebra. You can see on my screen on the right hand side I am having a notepad to be there. As my notepad is there, so I can use that to do for my lecture. Okay. Now, standard 9. Just a minute. Algebra subject, I will be going to take the lesson number 3, polynomials. Students, you are aware of this word polynomials. Okay?
So I give some examples here, sir. So from that we will conclude what is the definition of polynomial here. See, I write example 2x plus 5. Then 5x squared plus 7x plus 9. Then I write example 2y. Then 25 and 0. These are the 5 examples I front of you. In class 10 also we have studied. Let's revise that part before we go for the definition here. Now this expression comes of which variable? Yes, you are right, in the x variable. So what is the power of this x? Yes, power of the x is 1. Now the second example, this expression comes of which variable? We have to observe the name of the variable. So the variable is x. What is the power of the variable x? We have got two terms which are having the power. One is having 2, other is having 1. So the next example I am going for the 2y. 2y means it is in the variable y, in terms of y. So what is the power of this? Is 1. Then here I calculate number 25 is a constant number. But this 25, you can write as a 25 into 1. But this 1, we can write as a 25 into x equals 0. In class 8, we have studied a lot of indices. Base of indices. So this x equals 0 means 1. You can see my cursor very well. And my fast, you can tell me, I go a little slow. But this is just a revised topic, the introduction of this. So which is equal to, we are getting it here. Yeah. Now, the next is 0. This 0 is the constant number. It is a 0 number. That is also the constant, but 0 polynomial is called. Now let's conclude about all of these things. Okay, we'll come to the point here with respect to their powers. We have studied about what I wrote it here. These are the powers. Power of x, power of x, power of y, power of constant. So this power of x is 1, 2, 1, 0 like that. That means all these are the positive numbers. All those powers are positive numbers and 0. When all these are the positive numbers, as well as 0, they belong to the set of whole numbers. I'm writing it only for your understanding in short. I will do the definition detail afterwards. So this symbol belongs to all positive numbers as well as 0. We are taking the power in this example. So this power and 0 belong to set of whole numbers. And therefore, what we can conclude the definition of the polynomial, we can conclude the definition of the polynomial as with the powers of the variables. You can see my cursor again here. With the powers of the variables. Clear? Are you taking my point? I repeat again. If the powers of the variables are whole numbers, W-H-O-L-E. If the powers of the variables are the whole numbers means they are positive and 0 numbers. With the such identical expression is called polynomial. I repeat again, what is the polynomial? If you know what is the meaning of the polynomial. Okay? So, then shall be one expression, shall be one variables, if the powers belong. Madam, this is Santosh Tagle. Are you able to hear me? Yes, sure. Yeah. This is topic of lecture. I'll just brief you. Okay. Mute your both mic, laptop mic as well as your mobile mic. Okay, thank you so much. Now, you see, this is something we expect from you when you are teacher of mathematics, algebra, geometry, little bit part of science where you will be doing some numericals. Okay, wherever numerical comes, student don't like oral explanation of mathematical expressions. ये आपको समझ में आया और आपने बहुत ही अच्छे से इसको इस्तेमाल किया. बट सच पूछिए तो मैं इतना सारा आपके बारे में अच्छा बोल रहा हूं, तो इतनी जो ऑडियंस है ना 30-32 लोग, वो सब ये सोच रहे होंगे कि सर लेक्चर इतना अच्छा नहीं था.
अभी ये आप बोलेगी ये क्या है कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ जो हमेशा सबको गलत थोड़ा निगेटिव रिमार्क देता है, और सब लोग ऐसा क्यों सोच रहे होंगे? क्योंकि आपकी आवाज हमारे पास ठीक से नहीं आ रही थी। आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है, फिर भी आपके पूरे डिस्कशन में वॉइस में बहुत नॉइस था, बट हम में से सब लोगों ने कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि आप जिस तरीके से जा रही थी वो बहुत अच्छा था। तो आपको इसमें मैडम टेक्निकल पार्ट ऑफ टेकिंग मैथमेटिक्स लेक्चर जो आप ले रही थी, अलजेब्रा वॉटेवर, तो ये सारी चीज के लिए आप तैयार हो गई। आपने प्रैक्टिस नहीं की घर में 2-3 लोगों के साथ या दोस्तों के साथ या आपके टीचर्स कलीग है उनके साथ गूगल मीट की, जिसमें आपने वॉइस चेक नहीं किया। आपने लैपटॉप चालू रखा और आपने आपका मोबाइल चालू रखा, दोनों के माइक ऑन रहे होंगे या कुछ इस तरीके का, या हेडफोन की मिस्टेक होगी। इसके कारण जो भी आजू बाजू का विस्पर है, इवन वो केबल एक दूसरे के साथ हिल रहा है, या आपकी जो मतलब एक्सेल कर रहे हैं आप ब्रेथ, वो सब चीज हमको सुनाई देती है। और फिर आप लोगों से मैं सिर्फ ये चैट बॉक्स में अभी लिखवाना चाहता हूं, जब मैं बात करता हूं, जब शंकर सर बात करते हैं, तो वॉइस एकदम आपके बगल में मैं बैठा हूं ऐसा आवाज नहीं आता आपको? जस्ट यस और नो इन चैट बॉक्स। देखिए ये क्यों होता है मालूम है? माइक जो है ना, माइक में मैं मोबाइल से लेक्चर लेता हूँ, मोबाइल के माइक के पास अपना मुंह लेके जाके मैं बात करता हूँ, मैं हेडफोन इस्तेमाल नहीं करता। और मेरे घर पे नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम है कि एक डंडी रहती है, कभी कभी गलती से दूसरी डंडी मुंह दिखा के चली जाती है, फिर भी आपको कभी मेरा लेक्चर हमेशा क्लियर आता है, क्योंकि मैं ये पकड़ के चलता हूँ कि ये सब जो प्रॉब्लम्स है इंटरनेट या ऑनलाइन टीचिंग में, वही तो हमको ओवरकम करने हैं। तो आई अप्रिशिएट योर लेक्चर वाज वेरी गुड, बट ये जो सेकंड हाफ की जो मैं एक्स्ट्रा आपको कमेंट्स दिए, जिसके लिए आपको मैं मतलब सी इट वाज नॉट निगेटिव कमेंट्स, इट वाज समथिंग जो आप बड़े लोग हैं तो आपको थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। मैंने आपको पिछली बार मेरी सिस्टर का उदाहरण दिया था, तो उनको आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है ये समझाने में हमारे 2-3 दिन गए, जबकि उनका टीच पढ़ाना बाकी सब चीज बहुत अच्छा था। तो इसके लिए आप अच्छा प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से जा रही है आप, एंड इट्स वंडरफुल। बीच में जगदाड़े मैडम का मैसेज था कि मैं फिर से इसके बाद ले सकती हूँ क्या? तो मैडम मुझे एक पहले चीज चैट बॉक्स में आप लिख के दे दीजिए। मृदुला मैडम थी ना ये, मृदुला तुंगारे मैडम, आप अपना प्रेजेंटेशन बंद कर दीजिए, चलेगा। अभी जगदाड़े मैडम आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, इतने जो 9 लेक्चर आपने सुने अब तक के, क्या आपको आवाज क्लियर आ रही थी? चैट बॉक्स में यस नो लिखिए। जगदाड़े मैडम प्रेजेंट अब्सेंट? मैडम है ही नहीं लगता है। एनीवेज, शंकर सर टेक ओवर कर लीजिए, और जो दूसरे टीचर लेना चाहते हैं उनको लेक्चर लेना शुरू करने बोल दीजिए। मैं ये बोलना चाह रहा था, अच्छा प्रतिभा जगदड़ मैडम आ गई, वो बोल रही यस। मैडम आपको हमारी आवाज ठीक से आ रही है, मतलब हमारा नेटवर्क अच्छा है, आपका भी ठीक है। आपको आपके घर में अच्छा नेटवर्क जगह ढूंढ के ही लेक्चर लेने हैं और लेक्चर सुनने हैं, इस तरीके से करेंगे तो ही होगा। एनीवे आई विल नॉट वेस्ट मच टाइम। आप सबको मजा आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट आउटपुट देखने में मुझे बड़ा मजा आता है। तो जिस तरीके से आप लोग चल रहे हो, जैसे मृदुल सर को मैंने थोड़ा बोला कि आपको कुछ उस तरीके का बोर्ड इस्तेमाल करना चाहिए था, सर बुरा मत मानिए, बट मेरे एक्सपेक्टेशन आपके लिए ही थे। सो नेक्स्ट टीचर में प्लीज कंटिन्यू। शंकर सर इस मामले में सिक्वेंसिंग में आप ध्यान दीजिए, मैं सिर्फ एक ऑडियंस विद एक्सपर्ट कमेंट बीच बीच में इंटरफेयर करूंगा, तो मैं अपने आप को म्यूट कर। Okay, sir. So next is Vaishali Ambade ma'am. Ma'am, please start your demo. Vaishali Ambade ma'am. Yes, sir. May I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay, so I'm presenting my screen here. So just tell me whether my screen is visible or not. It is not visible yet. चिंता करू नका, कधी कधी थोडं लेट होतं. हा आलं आलं मॅडम. ओके, इट हॅज कम. Are you asking for
मैडम आपके घर में फैन चल रहा है या कुछ ऐसा है जो बैकग्राउंड में हाई पिच वेलोसिटी हाई पिच साउंड ले रहा है? हो गया बंद, बंद हो गया, बंद हो गया, ठीक है। So my screen is visible or not? विजिबल मैडम। Okay. So good evening everybody. As today I wish to explain about derivatives, but students can't understand this derivative part till they don't know about these functions. Okay. So today I am going to explain what is function, what are the types of functions, and how can we denote our variables in a function form. So before we start with this function, two basic terms I would like to say that in mathematics we know one term is a constant and variables. Okay, so first, what is the meaning of constant? So constant means what? We all know the constant means what? Which cannot move or which cannot vary. So that is called as a constant. And what is a variable? So variable means what? A quantity which we can say change. So when I want to denote or when I want to know what is a function, here I don't have a specific definition for this function, but by making or by taking one example, I can explain that how can we denote a function. So for this, I just need two variables. So example I wrote here that just we have to take two variables x and y, but condition is what that this x and y, these are related to each other. Okay, so we can take any example, we can take any variable, but we should need two variables to denote our function in which I need these two variables are related to each other. So just I am taking example, I am taking x as suppose my age and y as my height. So here I am highlighting this. 1 minute. Okay, so here I took this x as my age and y as my height. So all of you know that our height depends on our age, but because you can say that if height is depend on our age, means you can say that height is our dependent variable, whereas we can say age is our independent variable. So when I want to denote these two variables x and y in a function form, so I have to say, I can say that your dependent variable, which is my y, is always a function of independent variable, and I can express this in this form, that is y, which just now I told that is always a function of independent variable. So always when I am if I want to write two variables in a function form, I have to just note that these two variables should be related to each other, as well as one variable should be dependent and other variable should be independent. So then I can denote this by this formula. So now next part is our type of function. So type of functions here, basically there are two types of functions. First is called as your mathematical function and second is economic function. Now in mathematical function, we know all about this type, which is a constant function, means where our value, our fx should be constant. Then linear function, linear functions will be mostly of your ax plus b kind of functions. Then power function, mostly we know about the power function. Ambade madam. Yeah, this is Santosh Takle. Just wait. You can stop your presentation. I will comment bit because आप लोग फिर से वही पीपीटी लाइन पे जा रहे हो. आपका जो टेक्निक सी मैं आप लोगों के एक्सप्लेनेशन के टेक्निकल कंटेंट या उसका अच्छा होने, इस पे मैं आपको कमेंट नहीं कर रहा हूँ. आप लोग वैसे ही अच्छे और काफी वेटरन टीचर्स है, बट जो टेक्निक है उसमें मैंने आपको जो शुरुआत में पूछा, मुझे कुछ विस्लिंग या ऐसा हाई पिच साउंड आ रहा था, जो आप बोलती हो तो आता था. तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखिए कि शायद या हेडफोन, माइक्रोफोन या जहां आपका आवाज जहां से इंसर्ट हो रहा है वो माइक के यहाँ कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक होगा, तो ये चीज होनी चाहिए. रही बात मैथमेटिक्स, आप जो पढ़ा रही थी जो पार्ट, उसमें आप
थेरोटिकल पार्ट में थी, तो ऑब्वियसली आपका जो प्रेजेंटेशन है वो काफी सफिशिएंट था। बट आप लोग जब मैथमेटिक्स चीज को सीखना है और जिसके लिए आपने यहाँ 10 घंटे का ट्रेनिंग लिया, यू ट्राई टू यूज दैट पर्टिकुलर पेन टेक्निक जो तुंगारे मैडम ने इस्तेमाल किया। ये सारी चीज को आप निगेटिवली प्लीज मत लीजिए। मुझे जो लग रहा है कि एज ए मैथमेटिक्स टीचर, और जो आप इवन नॉट मैथमेटिक्स, कोडिंग, या इवन आप आगे जाओगे प्रोग्रामिंग वगैरह की बात करोगे, तो यहाँ पे इतनी सारी छोटी छोटी चीजें होती है कि वो लिख दे आप हाथ से, तो बच्चों को उसका फील और अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अच्छा आता है। सो दिस इज व्हाट फ्रॉम माय एंड। ये यहाँ तक खत्म नहीं हो रहा है आप सब लोगों के लिए। जिनको भविष्य में फिर से डेमो देना है या कुछ हमारी तरफ से मदद चाहिए, वी विल ट्राई टू हेल्प इन केस एज पर आवर अवेलेबिलिटी and as per your requirement. So we go ahead with the next teacher. Thank you, madam. Vaishali madam, we'll continue with the next teacher. Shankar sir, please take over. Yes, sir. Next teacher is Narendra Jadhav, sir. सर आपका प्रेजेंटेशन दिख रहा है, आप एक बार थोड़ा हेलो वगैरह बोलिए तो आवाज आ रही कि नहीं समझ में आ जाएगा। Sir, as I can see, your mic is off. Please turn on your mic by clicking on that left red button. हेलो सर, हाँ अभी आवाज आ रही है। ओके Yes, सर, yes. हाँ अभी मैं Yes. प्रेझेंट करतो। एक मिनिट थोड़ा सा मी मराठीमध्ये चालेल ना लेक्चर दिलं तर? सर काहीच हरकत नाही, हे तुमच्यासाठी आहे की तुम्ही विद्यार्थ्यांना ज्या भाषेत घेणार आहात त्या भाषेत तुम्ही बोलणार। ओके सर, हाँ. एक मिनिट। स्टॉप झाला, एक मिनिट। हाँ इथे जायचंय ना, सॉरी हा सर, थोडा वेळ, सॉरी सर, जरा हे झाला मला थोडस। इट्स ओके, इट्स ओके, तुम्ही या ओके, सगळ्यात नका हाँ. जाऊ। 2 मिनिटाच्या ऐवजी आम्हाला 1-1.5 मिनिटच तुमचं। हा प्लीज कंटिन्यू, इट्स ओके। हा आता दिसतंय का माझं स्क्रीन दिसतंय? येस सर। ओके, थँक्यू सर। नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण वनस्पतींचं वर्गीकरण हा धडा आपण सुरू केलेला आहे। त्या धड्यामधील द्विबीजपत्री आणि एकबीजपत्री ज्या वनस्पती आहेत त्यांमध्ये काय नेमका फरक आहे तो आपण जाणून घेऊया। चला तर आपण तो फरक जाणून घेऊया। तर ह्या ज्या वनस्पती आहेत द्विबीजपत्री आणि एकबीजपत्री वनस्पती, यांना डायकॉटिलिडॉन्स म्हणतात किंवा एक द्विबीजपत्री वनस्पती म्हणतात आणि एकबीजपत्री वनस्पतीला मोनोकॉटिलिडॉन्स म्हणतात। तर या वनस्पतींच्या बी, मूळ, खोड, पान, फूल या घटकांवरील नेमकेपणाने काय फरक आहे तो आपण जाणून घेऊया। यासाठी आपल्याला एक छोटासा प्रयोग करावा लागेल, परंतु आता सध्या मी प्रयोग केलेला आहे की काही बीज आहेत म्हणजे बिया आहेत त्या मी रात्रभर भिजत ठेवल्या आणि त्या बियांना दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 7-8 तासानंतर त्या बियांमध्ये काय फरक जाणवला तो मी ऑब्झर्व केलेला आहे। तुम्ही पण ऑब्झर्व करा, निरीक्षण करा आणि मग मी प्रश्न विचारेन तुम्हाला, त्याप्रमाणे त्या प्रश्नांच्याकडे लक्ष द्या आणि तुमच्या मनातच उत्तर द्या। सध्या आपण प्रश्न बघूया। तर पहिला जो घटक आहे वनस्पतीचा तो आहे महत्त्वाचा म्हणजे बी। तर या ठिकाणी मी तुम्हाला ते मार्क करण्यासाठी थोडंसं थांबतोय आणि मार्कसाठी मी दाखवतोय। त्या डाव्या बाजूला माझ्या म्हणजे तुमच्या सुद्धा द्विबीजपत्री वनस्पतीचं बी आहे आणि उजव्या बाजूला तुमच्या एकबीजपत्री वनस्पतींचं बी आहे। तर याचं कारण काय आहे ते मला तुम्ही सांगू शकाल का? तर मी पुढे जातोय म्हणजे तुम्हाला तिचे कारण लक्षात येईल। तर आपण बघूया, या ठिकाणी तुम्हाला दिसते त्या वनस्पतीच्या बीला 2 दलं आहेत। याचा अर्थ ही जी वनस्पतीचं बी आहे ते द्विबीजपत्री वनस्पतीचं बी आहे। तर म्हणून आपण याला या बीजपत्राला 2 दलं असल्यामुळे याला द्विबीजपत्री वनस्पती असं म्हणतो। आता या वनस्पतीच्या बी कडे पहा जरा,
मगासारखे याला 2 दल आहेत का? तर तुमच्या लक्षात येईल याला मात्र 2 दल नाही आहेत, याला एकच दल आहे. म्हणजे ह्या वनस्पती एक दल वनस्पती आहेत किंवा एकबीजपत्री वनस्पती आहेत. तर आता आपण बी बद्दल बोललो, पुढे आपण आता दुसऱ्या घटकाबद्दल बोलूया. तो घटक आहे मूळ. तर वनस्पतींच्या मुळांमध्ये काय फरक असतो तो तुम्ही लक्षात घ्या. डाव्या बाजूला द्विबीजपत्री वनस्पती आहे आणि उजव्या बाजूला एकबीजपत्री वनस्पती आहे. तर या ठिकाणी हिचं मूळ बघा आणि या वनस्पतीचं मूळ बघा. आणि मग विचार करा आणि मला त्याच्यावरून सांगा. मगाशी जी डाव्या बाजूला द्विबीजपत्री वनस्पती होती तिचं मूळ हे वेगळ्या प्रकारचं आहे बघा. हे वाढत गेलेलं आहे आणि त्याला पुन्हा उपमुळं फुटलेली आहे, त्याला आपण सोटमूळ म्हणतो. आणि त्यानंतर दुसऱ्या वनस्पतीचं मूळ मात्र मुख्य जे खोड होतं त्या खोडालाच पुन्हा खोडालाच मुळं फुटलेली आहेत. या मुळांना तंतुमय मुळं असं म्हटलं जातं. तर सर हा ओके सर, थांबू सर? ना थांबा, कारण खूपच छान व्यवस्थित, म्हणजे इट इज वंडरफुल. ओके. आणि मी असं फक्त लोकांना खुश करण्यासाठी बोलत नाही, हे तुम्हाला एवढ्या दिवसात माहिती आहे. यू कॅन स्टॉप युअर प्रेझेंटेशन. आय जस्ट गिव्ह फ्यू कमेंट्स अँड देन वी विल प्रोसीड टू द न्यू टीचर. ओके. सी द वे यू सेड की कॅन आय स्पीक इन मराठी, म्हणजे मी मराठीत बोलू का, तर हे तुम्ही एक पकडून चाला. इथे आपण भाषेचे चोचले पुरवण्यासाठी हे सगळं ट्रेनिंग घेत नाही आहोत. हम लोग यहाँ ये इसलिए ले रहे हैं कि अपने में कुछ हिंदी भाषिक है, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम को पढ़ाते हैं, तो कम्युनिकेशन हिंदी में रहे तो सबको समझ में आए, इसलिए मैं नॉर्मली हिंदी में बात करता हूँ. बट आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, आप मराठी मीडियम के बच्चों को साइंस पढ़ा रहे हैं, तो मराठी में ही वहां साइंस है, तो आपको उसको मराठी में ही पढ़ाना है. सर को मैं यहाँ एक्सलेंट वगैरह शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया कि सर ने शुरू जिस चीज में किया वो था प्रेशर, कि भाई पहली बार दे रहा हूं, ठीक है कि नहीं करके सर स्पीड में दौड़ रहे थे. बट थोड्या वेळाने म्हणतात ना रंगात येणं, तर सरांना एक पहिल्या 1 मिनिटानंतर ही लेफ्ट ऑल प्रेशर एंड देन ही स्टार्टेड गेटिंग इनटू हिज दैट टीचर्स रोल. और जब टीचर के रोल में गए तो जिस तरीके से वो खुद तंतुमूल सोटमूल उसको सर्कल बना रहे थे, दिखा रहे थे, इससे ज्यादा साइंस के, लैंग्वेज के, है ना, जो थेरोटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी के टीचर्स से कुछ एक्सपेक्टेड ही नहीं है. एक्सपेक्टेड है जो थेरी में लिखा है. आज सर ने तो प्रेजेंटेशन बनाया, इवन सर सीधा किताब खोलते थे पीडीएफ और वो खोल के उसी चीज को सर एडिट करके बताते थे. बट एक्सप्लेनेशन के समय बच्चों को वो सारी चीजें बताते थे, वो जो अनुभव के कारण सर को ज्यादा पता है. मतलब 8वीं के बच्चे को अगर 28 साल के उम्र के या 48 साल उम्र के सर पढ़ा रही है या मैडम पढ़ा रही है, तो वही फर्क है कि अनुभव से सर मैडम जो बता सकती है वो बच्चा खुद से इवन गूगल पे जाके भी नहीं समझ सकता. तो ये मुझे थोड़ा आप में नरेंद्र यादव सर दिखा. इट इज वंडरफुल. अदर्स ऑल्सो फॉलो दिस पाथ ओनली. और ऐसा नहीं कि इमीडिएटली हो जाएगा. मतलब आज कुछ लोग मराठी का हिंदी का डेमो देने वाले, ये जो चीज है, कल मैं शायद कल ही बात किया ना आप लोगों से कि आई डोंट वांट टू गेट इनटू द मच कॉम्प्लिकेटेड डाउट्स. मैं सिर्फ आपने जो सीखा उसका इस्तेमाल आप कितना अच्छे से करना चाह रहे हो, वो कर पा रहे हो कि नहीं, इसके ऊपर हम 2 घंटे डालेंगे. तो शायद आपको ऐसा लगा होगा कि मैं आपके लास्ट 2 घंटे जो है खा जा रहा हूँ. ऐसा नहीं था. शायद आज आप इतने लोग हैं, 30 लोग हैं, 2-3 लोगों का डेमो हुआ है, बाकी किसी ने क्लास लेफ्ट नहीं किया है. मतलब कहीं ना कहीं उनको इसका इम्पोर्टेंस समझ रहा है, या शायद हल्का फुल्का मजा भी आ रहा है. तो इट वॉज गुड सर, आपने अच्छा किया. और रही बात लैंग्वेज की, तो आप थोड़ा शुरुआत में वो जो इंग्लिश शब्द वगैरह है ना, थोड़ा जल्दबाजी कर रहे थे. आप लोग चिंता मत करिए, आजकल गूगल पे आप डालोगे ना तो इंग्लिश वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी आता है, सब कुछ आता है सर. तो ये सारी चीजें सिखाने जाएंगे तो 10 घंटे का 100 घंटा हो जाएगा. बट अगर आप चाहेंगे तो हम इसको फिर से एक बार कंटिन्यू करेंगे, बट दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू. अभी हम इसमें नहीं जाएंगे. अभी पहले हम इसी चीज को कंप्लीट करेंगे कि यहाँ जो 30 सर लोग मौजूद है, मैडम लोग, वो सब लोग क्लास लेने में सक्षम हो. इसमें मेरा एक क्वेरी था. पहली बार जब हमने डेमो के लिए आप लोगों को रिक्वेस्ट किया, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सोशल साइंस के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में लिखा था. वो सब सर लोग, मैडम लोग यहाँ प्रेजेंट है, बट फिर भी उन्होंने सीधा टाटा बाय बाय बोल दिया. उन्होंने डेमो में अपना नाम ही नहीं डाला. आप ये मत समझिए कि हिस्ट्री ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट नहीं है. हिस्ट्री ज्योग्राफी ही इंपॉर्टेंट है. ऐसा मैं बोलूंगा तो उसका एक्सप्लेनेशन में 10 मिनट तो आपको दे सकता हूँ, बट वक्त जाया नहीं करूंगा. नेक्स्ट सर मैडम करेंगे. यहाँ जो 30 लोग मौजूद है जिसमें 3-4 लोग हम हैं, तो
तो 26 लोगों को डेमो देना ही है आपके लिए। अगर आप ना बोलेंगे तो हम हाँ जबरदस्ती नहीं करेंगे, बट प्लीज आज कल में अपने पास टाइम है, अभी भी अपने पास 17 मिनट है, तो 17 मिनट में 3 लोगों का 2 लोगों का डेमो तो होना ही है। चल शंकर सर प्लीज नेक्स्ट सर को मैडम को The next teacher is Jyoti Bhanarkar ma'am. चलो ज्योति मैडम शुरू हो जाइए। हां हॅलो गुड इव्हिनिंग. आता मी माझी स्क्रीन शेअर करते. स्क्रीन येते का? हो हो दिसते मॅडम, तुम्ही स्क्रीन दिसते, स्क्रीनवर जे तुम्हाला दाखवायचं ती फाईल आणा. फाईल हे नाही होत आहे की अपलोड नाही होत आहे. नाही, त्यासाठी तुम्हाला ती जाऊन शोधून ओपन करावी लागेल. तुमच्या फोनच्या खाली 3 बटन असतात ना, त्यामध्ये बऱ्याचशा मल्टिपल विंडो ओपन करणारी एक फाईल बटन असतं. आणि होतं असं कधी कधी, टेन्शन घेऊ नका. पाहिजे तर तुम्ही यातनं परत बाहेर येऊन ती फाईल ओपन करा पहिल्यांदा, मग प्रेझेंट मोडला जा आणि मग परत तिथे विंडोज मध्ये जाऊन ती फाईल ओपन झालेली असेल तिला दाखवा, म्हणजे दिसेल. प्रेझेंट स्क्रीनचा अर्थ होतो. बोला 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 काय कुठे अपलोड म्हणजे यू आणि एक हे दाखवत आहे, 3 डॉट नाही दाखवत आहे. हे सगळे डाऊट ज्योती मॅडम ना जेव्हा शंकर सर आणि मंगलम सर शिकवत होते तेव्हा विचारायचे होते. हा आता तुम्ही काय करताय मला सांगा. होते आणि उद्या मी हे करते, ट्राय करते. हाँ वेरी गुड स्मार्ट. चलो नेक्स्ट टीचर. शंकर सर नेक्स्ट टीचर. हाँ ज्योति मैडम करतील नंतर प्रेझेंट. Yes sir, yes sir. Supriya Tawate ma'am. Good evening, students. गुड इव्हनिंग मॅडम. Yes, I'll present my slide. या प्लीज. Yes. Good evening once again. The subject is maths. Topic is let's identify geometrical shapes. Subtopic is square, triangle, rectangle, and circle. Learning objective is to know more about geometrical shapes, to know the mathematical concept of geometrical shapes. Resources required for the topic is plain paper or book, pencil, eraser, ruler, and bangle. Yes, now let us recap. Identify the following shape. Okay, I'll answer it. Yes. मॅडम तुमचं स्क्रीन तुम्ही शेअर करताय का? Yes, yes. पण तो दिसत नाही आम्हाला. हा दिसतोय दिसतोय. येस मॅडम. Visible आहे ना? Excuse Yes, me, sir. ma'am. Yes. It is visible. Yes, yes, now? madam. Please. Okay. Yeah, please. I'm presenting for standard second. The subject is maths. Topic is let's identify geometrical shape. Subtopic is square, triangle, rectangle, and circle. Learning objective is to know more about geometrical shapes, to know the mathematical concept of geometrical shapes. Resources required for the topic is plain paper, book, pencil, eraser, ruler, and bangle. Yes, let's recap. Identify the following shape. Yes. Now, students, just tell me which shape you can see here on the screen. Okay, I'll answer it. The shape is rectangle. Okay. Yes. Now, the second shape is triangle. And students, you are familiar with this shape. Okay, this shape is triangle. Next, this shape is square. Okay. Next, this shape is circle. So students, these are all geometrical shapes. Okay. So today we are going to learn more about geometrical shapes in the lesson. Let's identify geometrical shapes. Okay. Now listen explanation. The first shape is square. This is a square. A square has
4 sides. All the sides of a square are equal in length. See student, here you can see the sides. Okay, there are 4 sides and all the sides of the square are in equal length. See, can you see here student? See, 1, 2, 3, 4. All the 4 sides are marked here. Okay. Yes, this is an example of square. Carom board. Student, you might be playing carom board. Okay, so the carom board is square in shape. Okay, the next example is chessboard. Even chessboard is an example of square. Yes. Now students, see here, this is an example of square. This is wall clock. Okay. Yeah, the wall clock is square in shape. Okay, see, all the 4 sides are of same length. Yes. The next example of square is Ludo. Student, you might be playing Ludo. Okay, now the lockdown period is going on, so for a little bit entertainment we can play Ludo game. Okay, yeah, and even Ludo is an example of square. Yes. Now let me check how much you have understood. Now student, tell me, in this shape how many squares are there? Okay. Yes, anyone? Okay, I'll answer to it. In this diagram there are 2 square shape. Okay. Yes, the next shape is triangle. This is a triangle. Madam, this is Santosh Tagle. Yeah, Yes, we can stop here. Yeah. Okay. Yeah. See, madam was taking class for the 2nd standard. So this for 2nd standard, whatever Supriya madam has given is really wonderful. Normally identifying shape needs multiple shapes. Their connectivity to the practical things what 2nd standard kids they have seen in their earlier life. ये सब चीज सर मैडम की बहुत अच्छी थी. मैं सिर्फ आप लोगों के लिए मेरी तरफ से सजेशन देना चाह रहा था. जो मालूम है आपके स्कूल कॉलेज में बिल्कुल चलेगा ही ऐसा कुछ नहीं है. क्या होता है ना, बच्चों का एक लैंग्वेज होता है जिसमें बच्चों को समझ में आता है. इंग्लिश इज फॉरेन लैंग्वेज फॉर अस. मतलब भले आज मैं इंग्लिश अच्छा बोल पाता हूँ, पर मराठी मीडियम से हूँ, तो मेरा इंग्लिश के ऊपर इंजीनियरिंग होने तक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नहीं था. आप सबका भी कुछ कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ रहेगा. तो मैं ये चाह रहा था कि आपके एक्सप्लेनेशन में ना, अगर आप स्कूल के लेवल पे ट्राई कर रही है, आपके स्कूल में ये हो रहा है, तो आपके स्कूल के रूल्स से चलेंगे. बट पर्सनल लाइफ में अगर आप किसी को पढ़ा रही है, तो whatever you are teaching in English need to go in a student's own language. नहीं, नई शिक्षा नीति का मैं सपोर्ट करने के लिए सब भाषण नहीं दे रहा हूँ. मैं सिर्फ इसके लिए बोल रहा हूँ, आप जो इतना अच्छा चित्र बनाए, पीपीटी बनाया, ये सब चीज बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैडम दिख नहीं रही है, कुछ तो स्क्वायर दिख रहे हैं, चौकोन दिख रहे हैं, मैडम कुछ तो 2x² + y = लिख रही है. तो ये कनेक्टिविटी लाने के लिए बच्चों को उनकी लैंग्वेज में अगर आप बताएंगे तो उनको मजा आता है. जैसे आपने देखा होगा मेरे लेक्चर्स में मैं इंग्लिश थोड़ा कम, हिंदी ज्यादा, फिर मैं मराठी में जाता हूँ थोड़ा, फिर मैं हिंदी में आता हूँ. तो आप जब ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हो तो ऑडियंस के हिसाब से आपको लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए. छोटे बच्चों में स्पेशली आपको उनको ये महसूस कराना पड़ेगा कि वो सामने ही बैठे हैं, आप उनके सामने ही हो, सिर्फ आप नहीं दिख रहे हो, बोर्ड दिख रहा है, और वो बोर्ड इतना कलरफुल है कि आपको टेम्पररी टीचर को देखने की जरूरत नहीं है. दिस इज व्हाट वी डू इन आवर ऑनलाइन क्लासेस. स्पेशली वैशाली मैडम वगैरह जब पढ़ाती है तो बच्चे दुनिया इधर की उधर हो जाए, जाते वक्त बाय वैशाली मैडम बोलना भूलते नहीं, बिकॉज दे फील कि टीचर तो 1 घंटा हमारे साथ ही थी. तो सॉरी, यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दे दिया. और छोटे बच्चों के लिए आपको इस तरीके के टेक्निक्स इस्तेमाल करना जरूरी है, नहीं तो आप ये महसूस करोगे कि बच्चा उठ के कहीं चला गया. कुछ ऐसे नहीं होना चाहिए. ओके, इट वॉज गुड सेशन मैडम. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू मैम. चलिए नेक्स्ट टीचर प्लीज. शंकर सर. सर, लिस्ट फॉर टुडे इज ओवर सर. ओवर. ओके, तो अभी हम चलते हैं जगदाळे मैडम की तरफ. प्रतिभा जगदाळे मैडम. तुम्हाला घ्यायचं असेल तर घ्या, नेटवर्क मध्ये असाल तर. हो सर, आवाज येतोय का माझा? एकदम व्यवस्थित. ऍक्च्युली सर मी शिकवत नाहीये, ट्रायल म्हणून मी घेते. काही चुकलं तर सॉरी. डोंट गेट इनटू दिस फॉर्मॅलिटी. तुम्ही सगळे ट्राय करताय आणि तुम्ही सगळे
बऱ्यापैकी तुम्ही नाही आहेत पण बाकी मंडळी मोठे आहेत माझ्यापेक्षा तरी ते माझा ओरडा ऐकतात हे मला कौतुक वाटतं. पण मी माझ्या काही चांगल्या वाईट सवयीमधनं बाहेर येत नाही लवकर. त्यामुळे प्लीज असं काही फील करून नका घेऊ. प्लीज कंटिन्यू. ओके सर, थँक्यू सर. सर माझं स्क्रीन दिसतंय का? एक मिनिट, मला तर नाही दिसत आहे पण मगाशी माझ्याकडून चूक झाली. त्या मॅडमचा स्क्रीन दिसत होता, आता मला हा दिसतोय मॅडम. ओके सर. हम्म. सर आवाज क्लिअर आहे का? तुमचा आवाज क्लिअर नाही आहे अजून. सॉरी. तुमचं इव्हन सांगतो, तुम्हाला आवाज येत असेल माझा तर माझं थोडंसं ऐका. तुमचा आवाज क्लिअर नाहीये. तुमचं जे तुम्ही पीडीएफ प्रेझेंट करताय ना मॅडम, तेही क्लिअर नाहीये. म्हणजे तुमच्या नेटवर्क मधला जो केबीपीएस स्पीड, एमबीपीएस स्पीड आहे ज्याच्याने डाटा आत येते आणि बाहेर निघते, तो दोन्ही वीक आहे. त्यामुळे या बघा, म्हणजे जरा रीड करतोय मी, काहीतरी लिहिलंय सुधा मूर्ती 1950 असं काहीतरी लिहिलंय, मला नाही दिसत आहे व्यवस्थित. प्रसिद्ध लेखिका वाईज अँड अदर. झालं, मी माझ्या मनाने वाचतोय हे, त्यामुळे नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे. बोला बोला. हा सर, आता येते का आवाज? येतोय. ओके सर, तर मी प्रेझेंट करू का? प्लीज, प्रेझेंट झालात तुम्ही ऑलरेडी, तुम्ही फक्त ते वाचा आणि शिकवा. ओके सर, मी ट्राय करते. चुकलं असेल तर सॉरी. इट्स फाईन, प्लीज. नेटवर्क असताना मस्ती नका करू. हा ओके ओके. आज आपण इयत्ता 7वीचा मराठी विषय सलाम नमस्ते हा शिकणार आहोत. तर याच्या लेखिका आहेत सुधा मूर्ती. त्यांचा जन्म 1950 साली झालेला आहे. त्यांची जी साहित्य आहे त्यापैकी वाईज अँड अदरवाईज, सामान्यातले असामान्य, अस्तित्व, आजीच्या पोतडीतील गोष्टी, आयुष्याचे धडे गिरवताना, बकुळा, गोष्टी माणसांच्या इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. प्रस्तुत पाठ जो आपण पाहणार आहोत तो पुण्यभूमी भारत या कथासंग्रहातून घेतला आहे. सुधा मूर्ती यांच्या संग्रहाचा आहे. स्थिती आणि शेख यांच्या ठाई दिसते. अत्यंत हृदयस्पर्शी आपण मॅडम, तुमचा आवाज येत नाही, मध्ये मध्ये ब्रेकिंग, ब्रेक तर होतोच पण मध्ये पूर्ण गायब पण होतोय. तुम्हाला माझा आवाज येतोय? हा येतोय, बोला. ठीक आहे. तुम्ही वाईट वाटून नका घेऊ, मी तुम्हाला काहीतरी सांगतो, ऐका. तुम्हाला आवाज येतोय मॅडम माझा? There is some huge network problem for madam. Madam, come to network area. Stop your presentation and we will conclude today's session with short note which I wanted to share with you all. मॅडम ना आवाज जातोय असं मी ब्लाइंडली कंसिडर करतोय, कारण मला बाकी टीचर्स नाही एक सल्ला द्यायचा है. देखिए सब टीचर्स, आप जो ये अभी आपने जो सबके थोड़े थोड़े डेमो सुने, ये तो हार्डली हो गए, आज हो गए, शुरू किया था हमने मृदुल सिंह सर से, फिर हो गए 1 2 3 4 5 6 और जगदाड़े मैडम अभी 7, तो तकरीबन 7, और उनमें सब हो नहीं पाए अगर हम पद ठीक से. तो मैं आपको जो सजेशन दे रहा था वो ये था, आप जैसे बीच में जो सुप्रिया मैडम ने लिया तो वो बच्चों से बात करना चाह रही थी, जवाब लेना चाह रही थी, बट देन शी वाज थिंकिंग कि बच्चे तो है नहीं सामने, सब बड़े हैं. बट देन यू डोंट फॉरगेट, बच्चे हो या बड़े हो, आपको सब जवाब जो है माइक ऑन करके नहीं देने वाले,
क्योंकि 10 बच्चे भी सामने होंगे और माइक ऑन करेंगे तो इनडिसिप्लिन बहुत हो जाता है। सो आप सबको एक ही चीज करना है कि चैट बॉक्स में जवाब लेना है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ये ऑप्शन यूज नहीं किया मतलब आप सोच के चल रहे थे कि कैसे मांगे, कैसे पूछे। तो आपको ये समझना जरूरी है कि ये आपका तरीका होगा, तभी बच्चों से आप बात कर पाएंगे। धीरे धीरे देखिए, आप तो सब बड़े हैं, डिसिप्लिन लोग हैं, फिर भी हमने आपको कभी भी माइक ऑन करो ऐसे नहीं बोला, बहुत रेयरली बोला। तो आप सबको ये पक्का दिमाग में रखना है। धीरे धीरे जैसा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जैसे आपके बच्चों के साथ आपका कांटेक्ट अच्छा होगा, डिसिप्लिन एक बार सेटल हो जाएगी, तो आपको बच्चों को माइक ऑन करने की भी सुविधा या उस तरीके का ऑप्शन दे सकते हैं आप। तो ये छोटी छोटी चीजें है बहुत ही छोटी है। जैसे पहले किसी मैडम ने लिया तो उनका लेक्चर बहुत अच्छा था, अलजेब्रा वाली मैडम, तुंगारे मैडम, बट उनके पीछे बैकग्राउंड में आवाज बहुत आ रहा था। तो ये सारा चीज आपको घर में फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड सर्कल के साथ इम्प्रोवाइज करना है। बाकी चीजें तो टेक्निकल कंटेंट आपके पास ऑलरेडी है। कुछ लोग ये चाह रहे थे कि गुड टीचिंग के बारे में मैं कोई लेक्चर लूं। इफ दिस 30 people are interested, that will be totally free of cost lecture on some holiday मैं लेना चाहूंगा, और उसमें हम बाकी सबको भी इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि व्हाट शुड बी मिनिमम आउटपुट ऑफ टीचर, इस पे थोड़ा बहुत बात करेंगे। बट एनीवे, दिस इज नाउ टू लेट, विल स्टॉप हियर। थैंक यू फॉर योर काइंड सजेशंस। हो गया मैडम की तरफ से। जगदाड़े मैडम, आप दिल छोटा मत कीजिए, आपको अगर इंटरेस्ट है तो आपको परफेक्टली अच्छा टीचर बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं, वैशाली मैडम की है। आई थिंक यू हैव मेट हर व्हेन शी विजिटेड योर प्लेस। दूसरी बात यहाँ तक कि आप अगर सचमुच ऑनलाइन टीचिंग में इंटरेस्ट है, क्योंकि आपने कभी पढ़ाया नहीं, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी को आप इनकैश करिए, मैडम आपको पूरी मदद करेंगी। हम एक ही चीज में आपकी मदद नहीं कर सकते, वो है नेटवर्क। वो आपको खुद को ही लाना होगा कहीं से पकड़ के, तो आप उसको देखिए। आप सबने आज मुझे सुना, आपका वो गेन कॉन्फिडेंस फ्रॉम ईच टीचर्स, थैंक्स। ओके, थैंक यू सो मच। कल भी अटेंड करना है, कल बचे हुए लोगों को डेमो देना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले लोग तैयार हो जाइए, ज्योति मैडम तैयार हो जाइए प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ये जानने के लिए। और प्रतिभा जगदाड़े मैडम, आप नेटवर्क एरिया ढूंढ लीजिए। चलो आज के लिए गुड नाइट बोलता हूँ सबको, सब लोग क्लास लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। थैंक यू बहुत सारे लोगों ने डेमो